Hello everyone. Today we will discuss about the chapter number 1 of class 11th of political science, that is constitution, why and how. Okay. इस chapter में हम देखेंगे that why do we need constitution, what are the special features of constitution, how constitution of India come into existence, what are its merits and demerits, and from where we borrowed the some basic and very fundamental topics of the constitution in India. Okay, so and also why the Indian constitution is known as bag of borrowing. Now the first heading of your chapter is that what is constitution. Okay, the initials, before we need to know that why we need constitution, first we have to know that what is constitution before come to the main topic, which is in your book, that why do we need constitution. First we need to understand that what is constitution. Okay, constitution provides set of rules and regulation that govern a state or society. Constitution provide a set of rules and regulation that govern a society. That means that in constitution the rules and regulations is written which provide a very basic and fundamental identity to the citizens, and provide security to the citizens, or provide each and every aspect, social and cultural aspect of the human beings in society or a state. Now कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि संविधान का मतलब है कि किसी देश में, ठीक है, किसी देश को चलाने के लिए कुछ नियम और कानूनों की ज़रूरत पड़ती है. यदि ये नियम और कानून नहीं रहेंगे तो आपस में लोगों के बीच में यूनिटी नहीं रहेगी, ठीक है, एक दूसरे में लोग आपस में ही लड़ेंगे और शायद ह्यूमन एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स और रेगुलेशन प्रोवाइड करती है जिससे कि क्या होता है, किसी भी देश और किसी भी राज्य को अच्छी तरह से चलाया जा सकता है. आप एक बात याद रखिएगा कि जो स्टेट है ना, स्टेट का मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में होता है नेशन. ठीक है, नेशन मतलब कि कंट्री. ना इतना आपको समझ में आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड कराती है, देती है हमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस. कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस लिखे होते हैं जो किसी देश को चलाने के काम आते हैं कि किसी देश को किस तरह से चलाया जाएगा. ठीक है, अब हम और देखेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन या कौन कौन सी बेसिक डिटेल्स या कौन कौन से राइट कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करती है. बट नाउ हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ टू टाइप्स. नाउ Constitution in India is of two types in all over the world. Number one is written constitution and number two is non-written constitution. In written constitution, there was one book which contains lots of pages, and that was written, and the rules and regulation is in written form. For example, India, United States of America, Canada, and the rest of the countries. And the best example for non-written constitution is Britain. Britain provide a very best example of non-written constitution because in non-written constitution, the conventions, the tradition which follows from very last few years, that followed by this constitution or the government of the country, and the historical documents that has been signed and that were being signed by the different governments is there. So this makes a constitution which is not in a written form. Okay, जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो दो तरह की होती है, एक रिटन और नॉन रिटन. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है उसमें, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस रहते हैं वो लिखित रहते हैं. जैसे आपकी जो बुक होती है ना, बुक में आपको जितने भी पेजेस मिलेंगे सभी पेजेस में कुछ ना कुछ लिखा होगा. सिमिलरली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स और रेगुलेशंस जो रहते हैं वो लिखे हुए रहते हैं. जैसे इंडिया में इनिशियली 395 था आर्टिकल्स, फिर 450 हो गए. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है, मतलब कि हमारे पास उन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा डिटेल है, लिखा हुआ है कि किस तरह से किसी देश को चलाया जाएगा, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, किस तरह से रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाएंगे. गेटिंग माय पॉइंट. ना नॉट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होती है जो किसी देश में परंपराओं के आधार पर चलाई जाती है, मतलब कि उसके लिए किसी रिटन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है. पहले जिसको प्रैक्टिस किया जाता था, जो परंपराओं के आधार पर चलती गई और वही बाद में सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर ली और उसे एज अ कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिया. ठीक है, कुछ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना, वो बहुत सारे, जब कई देशों में कॉलोनीज इस्टेब्लिश करके रखी थी तो वो लोगों ने क्या किया था, बहुत सारे चार्टर साइन करे थे अलग अलग देशों के साथ. तो वो चार्टर, कन्वेंशन, वो सब जो है वो है क्या, एक तरह से नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है. इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है,
Britain is best example for non-written constitution and which is a monarchical democracy, जहाँ रानी का शासन है लेकिन लोकतंत्र भी है, ठीक है। नंबर टू नंबर थर्ड पॉइंट इज दैट कि इसमें कई सारे और नेशंस है, जैसे दैट फिनलैंड हो गया है ना, फिनलैंड के बाद अगर मैं बात करूँ हंगरी विच इज़ ऑल्सो अ नेशन, तो इसमें कई सारे एग्जांपल्स और हैं, आपको दो बता दिए मैंने, फिनलैंड और हंगरी, विच इज़ अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन और नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन जो रहता है वो हर देश में होता है, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो चाहे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो या मोनार्कियल कंट्री हो, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट इन ईच एंड एवरी नेशन। देखो, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन हर नेशन में होता है, बट उसका जो सेंस या उसका जो फॉर्म रहता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ हमारे देश में या लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक नेशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई जाती है वो सिटीजन्स को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। ईच एंड एवरीथिंग विच इज रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was included after taking into the consideration of the citizen of India. Now, in monarchical constitution में क्या होता है कि राजा जो रहता है, इन मेनी कंट्रीज इन monarchical constitution that the king or a queen is a nominal head, he or she is only a nominal head, मतलब सिर्फ नाम मात्र का शासन या राजा रहता है, बाकी जो भी काम होता है वो गवर्नमेंट करती है, मतलब गवर्नमेंट इज सुप्रीम। तो मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन में आजकल कई सारे ऐसे देश है जहाँ राजा जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनवाता है, बट कई बार ऐसा भी होता है कि जो राजा रहता है वो क्या करता है, अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है कि किस तरह से मैं देश चलाऊंगा, है ना, वो सिटीजन्स को कंसिडर नहीं करता है, सिटीजन्स को इंक्लूड नहीं करता जब वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, ठीक है। मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन में भी कई बार हमें देखने को मिलता है कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मिल सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी नहीं है कि रिटन हो या अनरिटन हो, ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कॉन्स्टिट्यूशन नीड टू बी रिटन। ऐसा भी होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन नॉन रिटन होता है, मोनार्कियल देशों में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो नॉन रिटन है, वो सारी चीज़ें जो हमें रूल्स और रेगुलेशंस प्रोवाइड करती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती है, अब वो रिटन हो चाहे वो नॉन रिटन हो। स्कूल में कहीं ऐसा कुछ लिखा रहता है कि बच्चों को सुबह जाकर मॉर्निंग प्रेयर करनी है, नहीं, है ना, स्कूल में कहीं ऐसा कुछ लिखा रहता है कि बच्चों को क्लास में आकर टीचर जब आएगी तो खड़े होना है, नहीं, ये सब आप फर्स्ट क्लास में सीखते हो और धीरे धीरे वो आपकी आदत में आ जाता है। सिमिलरली जब जिस देश में कन्वेंशन या ट्रेडिशन जिस तरह से चलते आते हैं वही कंटिन्यू होते हैं, उस नेशन को क्या कहा जाए, उस नेशन में कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन होती है, नॉन रिटन। ब्रिटेन इज एग्जाम्पल, ये तीसरी या चौथी बार मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, विच इज जो आपकी बुक का बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट है, दैट व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, ठीक है। देखो, पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन मिनिमल कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अ मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द डिफरेंट सिटीजन्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या होता है, ये पहला पॉइंट है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मिनिमल कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराता है। अब ये मिनिमल कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कैसे कराता है, होता क्या है कि अगर मैं बात करूँ एक ऐसी सोसाइटी को आप इमेजिन करो जहाँ ना रूल्स है ना रेगुलेशंस है, जहाँ ना कोई पुलिस है ना, ना कोई कोर्ट है, ना कोई कचहरी है, मतलब कि कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, उस एक सोसाइटी का एग्जिस्टेंस इमेजिन करो जिसमें लोग आपस में लड़ भी सकते हैं, किसी का मर्डर भी कर सकते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पनिशमेंट देने वाला नहीं, है ना, ऐसी सोसाइटी का इमेजिन करा। क्या होता है, अगर हमारे देश में या किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन या रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं रहेंगे तो क्या होगा, जो भी ह्यूमन बींग्स हैं आपस में ही लड़ते रहेंगे, आपस में ही लड़ते रहेंगे और लोगों के बीच में कोई टेरर नहीं रहेगा या कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा कि हमें सोसाइटी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, ठीक है। तो जस्ट फॉर दैट से कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोवाइड करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि देश को चलाना कैसे है, मतलब एक नेशन को किस तरह से हमें रन करना है, किस तरह से एक नेशन को चलाना है, या किस तरह से लोगों को पनिशमेंट देनी है अगर वो किसी रूल्स को अबाइड नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ नंबर 2 और बी, अथॉरिटी मेकिंग। कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि किसके पास है पावर गवर्नमेंट बनाने की, मतलब कि हु हैज राइट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, who has right to take decision on the behalf of nation or on the behalf of the citizen of India now or any other nation। कॉन्स्टिट्यूशन ये डिसाइड करता है या कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि किस तरह से सरकार बनेगी और कौन सरकार को चुनेगा और सरकार के क्या क्या काम रहेंगे, ठीक है।
देखो, अगर मैं बात करूं हमारे देश की, तो हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्लियरली ये मेंशन है कि हमारे देश में इलेक्शंस होंगे। इलेक्शंस हम रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने चुनेंगे, वोट देंगे, और जो जीतेगा वो जाकर हमारे लिए काम करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट कौन बनाएगा ये स्पेसिफाई करती है कॉन्स्टिट्यूशन, या अथॉरिटी कैसे बनेगी ये कॉन्स्टिट्यूशन बताती है कि किस तरह से किसी देश की गवर्नमेंट को हमें फॉर्म करना है। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ The third one और C section is that set limits on authority। अब सरकार बन गई, गवर्नमेंट बन गई, लेकिन कई बार ऐसा देखा होगा हमने, जिसके पास ज़्यादा पावर हो जाती है वो क्या करता है, कई बार अपने आप को पावर में ही रिमेन करने के लिए या अपने आप को पावर में ही कांस्टेंट रखने के लिए क्या करता है, कई सारे चेंजेस ऐसे कर देता है कि उसकी पावर को कोई हार्म ना करे, है ना। तो उस चेंजेस को ना लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी में कुछ लिमिट्स तय करती है। हमारे देश का जो संविधान है वो कुछ लिमिट्स तय करता है कि किस तरह से अगर अथॉरिटी बनती है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट जब एग्जिस्टेंस में आई तो गवर्नमेंट को किस तरह से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लिमिट कन्फाइन करेंगे उसकी पावर को, जिससे कि बाकी नेशन जो सिटीजन्स है या जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे देश में संविधान में मेंशन नहीं होता कि जो गवर्नमेंट है ना, वो नागरिकों के लिए काम करेगी, तो ऐसे में क्या होता, आज शायद हमारे देश में इलेक्शन नहीं होते। और जब पहली सरकार बनी थी कांग्रेस की, तभी हमारे देश में, या कांग्रेस की या किसी बाद में बीजेपी की, अभी जो भी सरकार बनी है उसमें क्या होता, कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर क्या कर दिया जा सकता था, ये बदलाव लाया जा सकता था कि हमारे देश में आपसे इलेक्शन नहीं होंगे और जो पॉलिटिकल पार्टी चुनी गई है वो चुनी गई है। बट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने के लिए भी अमेंडमेंट्स होते हैं, वो हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ लिमिट्स तय करता है, किसके लिए, अथॉरिटी के लिए। मतलब जो अथॉरिटी होती है ना, जो गवर्नमेंट, उनकी पावर्स को लिमिट करता है ताकि वो अपनी पावर्स को खराब इस्तेमाल ना करे, नेगेटिव इस्तेमाल ना करे, जिससे कि जो सोसाइटी है वो क्या हो, हार्म हो। ठीक है, एक बात और आप अगर चाहो तो ये सेक्शन में ऐड कर सकते हो, अभी रिसेंटली मुझे याद आया। अगर हम बात करते हैं हमारे देश में अलग अलग सोसाइटी, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। ठीक है, ये जो अलग अलग कास्ट है, अलग अलग सोसाइटी की ह्यूमन बींग्स हैं, इनमें कई सारे डिफरेंसेस हैं। इस डिफरेंसेस को यूनाइट कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। इस डिफरेंसेस को यूनाइट करने वाला काम कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कोऑर्डिनेट करवाता है अलग अलग सिटीजन्स ऑफ नेशन को। ठीक है, मतलब कि यूनाइट कराता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक आफ्टर सी, दैट इज डी, और फोर्थ पॉइंट। नाउ फुलफिल एस्पिरेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन फुलफिल करता है एस्पिरेशंस ऑफ द सोसाइटी। मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई है, जो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई जा रही है, मतलब किस तरह से गवर्नमेंट बनेगी, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को हम कन्फाइंड करते हैं, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट make that much confine the power of government that it does not do any work for the citizens of, for their representative, for their citizens। अगर गवर्नमेंट की ऐसी पावर्स भी कन्फाइन कर दी जाएगी जिससे वो लोगों का भला करना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, वेलफेयर नहीं हो पाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ह्यूमन बींग्स के वेलफेयर के बारे में भी सोचती है। जैसे अगर मैं बात करूँ राइट टू एजुकेशन, डिस्क्रिमिनेशन को हटाना, है ना, या अगर मैं बात करूँ SC STs को अपलिफ्ट करना, या ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल की बात करना, या अगर मैं बात करूं कि ह्यूमन बींग्स को बोलने का अधिकार होना, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुछ फंडामेंटल राइट्स देती है जिससे ह्यूमन बींग एग्जिस्ट हो सके, ह्यूमन बींग्स अपनी लाइफ को फ्रूटफुली क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, या अपनी लाइफ को अच्छे से जी सके। ठीक है, नाउ द ई सेक्शन और फिफ्थ पॉइंट इज दैट फंडामेंटल आइडेंटिटी। नाउ व्हाट इज फंडामेंटल आइडेंटिटी? आज वी नो दैट, जैसे कि हम बात करते हैं वी आर इंडियंस, so the Indians is given by whom? The fundamental identity. The constitution provides the identity to their citizens. किसी देश का नागरिक कैसा होगा, कि हम किस तरह से किसी देश के व्यक्ति को सिटीजनशिप देंगे। जैसे हमारे देश में सिटीजनशिप का क्राइटेरिया क्या है, हम मतलब कि एक देश का सिटीजनशिप को कैसे हमें क्राइटेरिया देना है, या कैसे हमें किसी देश की सिटीजनशिप को डिसाइड करना है कि हमारे देश का नागरिक है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं। पहले तो वो 35 साल से कई सालों से हमारे देश में रह रहा हो, पहली बात, उनके जो फोर फादर्स है वो हमारे देश में रह रहे हो, दूसरी बात, या उनका कुछ ऐसा वर्क हो या मैरिज के कारण वो यहाँ स्टे करने लगे हो, तीसरी बात, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि जो फंडामेंटल आइडेंटिटी प्रोवाइड कराई जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, हम बोलते हैं हम भारत के नागरिक हैं। क्यों बोलते हैं?
क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि अलग अलग डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएंगे, अलग अलग तरह से डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएंगे और उस डॉक्यूमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराएगा, है ना। आधार कार्ड वगैरह के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन आइडेंटिटीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मेंशन है कि किस तरह से आप किसी व्यक्ति को अपने देश का नागरिक बनाओगे या किस तरह से किसी व्यक्ति को आप डिसाइड करोगे कि ये हमारे देश का नागरिक है। तो यहाँ आपके ये 5 पॉइंट्स खत्म होते हैं। आप अपनी बुक में देखिएगा, क्लियरली आपको दिखेगा व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन की हेडिंग में मिनिमल कोऑर्डिनेशन, बेटा मैंने हेडिंग डाली है सिर्फ, ठीक है। आपको एक्सप्लेनेशन डिटेल में उसमें देखना है, एक बार आप रीड करिएगा, वंस रीड इट एंड देन आफ्टर मेक अ प्रॉपर नोट्स। ओके, मिनिमल कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड कराता है, एक बार फटाफट देख लेंगे। सेकंड, अथॉरिटी मेकिंग स्पेसिफाई करता है दैट हु हैज अ पावर टू मेक द अथॉरिटी और हु हैज अ पावर टू मेक द गवर्नमेंट। So ultimately in India the power is given to the citizens of the nation. Now set limits on the authority. अब authority बन तो गई है पर कुछ limits भी set होने चाहिए। पता चले authority अपनी मर्जी से काम कर रहा है without any confined or without any limitation that it harms the society. So ultimately the constitution decides that who sets the limit on the authority. Number fourth is fulfill aspiration. Human beings have several rights and several aspirations. हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं, उस ड्रीम को पूरा करने का काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू एजुकेशन, राइट टू से फ्रीली, राइट टू लिव, राइट टू लिबर्टी, राइट टू टॉक एंड सो ऑन। ये जो एस्पिरेशन है, हमारे कुछ इच्छाओं को कॉन्स्टिट्यूशन पूरा करता है। अगर हम किसी सोसाइटी को अपलिफ्ट करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन उस सोसाइटी को भी अपलिफ्ट करने की कोशिश करता है। नाउ लास्ट वन इज फंडामेंटल आइडेंटिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि किसी देश के नागरिक को कैसे मतलब हमारे अपने देश के नागरिक को आप कैसे बताओगे, ये कैसे डिसाइड करोगे कि हमारे देश का नागरिक है। कॉन्स्टिट्यूशन देश के व्यक्तियों को नागरिकता भी प्रदान करती है या सिटीजनशिप भी प्रोवाइड करती है। नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, दीज आर द बेसिक एसेंस ऑफ योर हेडिंग 1 दैट व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। आपको व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर्ली यहाँ से ये पूरे 5 पॉइंट्स आपको लिखना है इसमें से, या अगर आप चाहो तो बुक में जो ब्लैक बोल्ड में लिखा हुआ है आपकी बुक में, आप वो भी लिख सकते हैं, बट मेक श्योर दैट योर नोट शुड बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। नाउ दिस मच इज क्लियर। नाउ वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट हेडिंग इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।